اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، جہاں تو برائی دیکھے اس کو بڑے اچھے اور احسن انداز سے دور کر۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تیری اس کوشش کا صلہ یہ ہوگا کہ تیرے اور اس کے درمیان جو اچھائی اور برائی کی وجہ سے عداوت تھی، کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ گوڑی دوستی میں بدل جائے گی۔ اس آیہ مقدسہ میں حضرت انسان کو اس حقیقت سے آگاہ رکھا گیا ہے کہ عداوت ختم کرنے کا طریقہ، اور وہ عداوت اس بنیاد پر ہو کہ تو اچھائی کا علم بردار ہے اور دوسری طرف برائی کا اظہار ہو رہا ہے۔ اگر تو برائی کو ختم کرنے کے درپے ہے تو دوسرا تیری مخالفت کرتا ہے اور تو اچھائی کا علم بردار ہے، اس کا حل تو ہے، لیکن اگر تو مخالفت برائے مخالفت پر ہے، دوسرے کو صرف نیچا دکھانا ہے، صرف عداوت ہے تیرے دل میں حسد تعصب کی وجہ سے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں جب تک حسد نہ چھوڑا جائے اور جب تک تعصب ختم نہ کیا جائے۔ تو ہاں، اگر تو اچھائی کا علم اٹھا کے رکھا ہے اور دوسری جانب تمہیں واضح نظر آ رہا ہے کہ برائی ہے، باطل پرستی ہے، غلط ہے، باطل ہے، تو اس کو ختم کرنے کے درپے ہے، تو یہ ایک تعمیری جذبہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ برائی اور اچھائی ایک جیسے ہو جائیں۔ ہمیں کوشش کرنی ہوگی اور کرتے رہنا ہوگی کہ دوسروں کے اندر اچھائی کی نشو و نما کریں، اور دوسروں میں اگر باطل ہوگا تو وقتی طور پر مخالفت ہوگی، رکاوٹ ہوگی، لیکن نشو و نما اچھائی کو دینے کے لیے بہر صورت کوشش جاری رکھنا ہوگی۔ انسان کی یہ کوشش اپنے ساتھ بھی چلتی ہے کہ اپنے اندر کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو کمزور کرتا ہے، آہستہ آہستہ ختم کرتا ہے، اور اچھائی کو اور نیکی کو اپنے اندر طاقت دیتا ہے۔ پھر یہ کوشش کا دائرہ انسان کے گھر کی چار دیواری میں ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں میں ہوتا ہے کہ ان کے اندر زیادہ سے زیادہ اچھائی اور نیکی پن پہ، یہ اچھے اقدار اور اعلیٰ اخلاق کے حامل ہو جائیں۔ تو اسی طرح انسان کی یہ کوشش پھر دائیں بائیں بھی رخ لیتی ہے، اپنے گرد و نواح میں بھی اچھائی کا ماحول دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ جو کوشش ہے یہ انسان کی ایک فطرتی کوشش ہے، تعمیری کوشش ہے۔ اس میں حضرت انسان کو اس بات سے آگاہ رکھا گیا ہے کہ یہ تیری کوشش جاری رہنی چاہیے، کیونکہ تیرے مقابل میں جو جہالت ہے، باطل ہے، وہ اچھائی کی جگہ نہیں لے سکتی اور برابر نہیں ہو سکتی۔ تو اگر اچھائی کا علم بردار ہے تو تمہیں بہر صورت اچھائی کی طاقت و کوشش کرتے رہنا ہوگی، اور دوسری طرف باطل ہے، جہالت ہے، اس کو آخر ایک دن مٹنا ہی ہوگا۔ تو فرمایا اگر تو کوشش اچھائی پر کر رہا ہے تو پہلے نمبر پر اچھائی کا نمائندہ تمہیں خود بننا ہوگا۔ یہ نہیں تیری زبان سے الفاظ اچھے ہوں لیکن تیرا کردار و عمل اس اچھائی کی ترجمانی نہ کرتا ہو، خود کردار و عمل میں اچھائی کا پیکر نظر آئے، پھر تو دوسری طرف اچھائی کی روشنی اور نیکی پھیلانا چاہتا ہے، تو باطل اور جہالت کو ختم کرنے کی جو کوشش ہے وہ تیری انتہائی اچھی ہونی چاہیے۔ پہلے نمبر پر تو یہ تھیوری سمجھ لیجئے جو سامنے رکھی گئی کہ اچھائی برائی یکساں نہیں ہو سکتی۔ کوشش اس دھرتی میں ہوتی رہے گی، آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور آ کے کرے گا۔ جہالت کو، باطل کو ختم کرنے کی کوشش اس دھرتی میں ضرور ہوگی۔ فرمایا اور اب تیرا یہ سفر شروع ہو گیا، تو نے جہالت کو، غفلت کو، برائی کو ختم کرنا ہے، تو اس میں تمہیں جو سب سے اچھا اور بہتر طریقہ ہے وہ اختیار کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ تو اچھائی کا تو علم بردار بنے اور پہلے نمبر پر تیرا وجود خود اس میرٹ پر نظر نہ آئے،
तो खुद उस अच्छाई का इतना आला किरदार नजर न आए, दूसरे के लिए रूल मॉडल ना बने। आज बड़ी तहकीक तरबियत के हवाले से दिन ब दिन हो रही है, क्योंकि तरबियत का फुकदान नजर आ रहा है। तो इस बात को बड़ा शिकवे के साथ बयान किया जाता है कि तुम जैसे ज़बान से कहोगे तो उस पर फिर शिद्दत इख्तियार करोगे कि मेरी बात पर अमल क्यों नहीं हो रहा। तो अगर तू कहना चाह रहा है उस पर तू खुद रूल मॉडल बने तो तेरे अंदर शिद्दत खत्म हो जाएगी। तो फिर खुद को ज्यादा से ज्यादा ऊंचा करना चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा मुअस्सर साबित बनूं और दूसरे के नजदीक अपने आप को काबिल तस्लीम बनाऊं। जबान जब अमल से आगे बोलती है तो मुतशद्दिद हो जाती है। जब आप अमल की जबान से बोलेंगे तो फिर आप सिर्फ जबान उतनी इस्तेमाल करेंगे कि जो तर्जमानी की हद तक हो, और आगे आप अपने अमल के जोर से आगे जाएंगे। ये वो तरीका है जिसके साथ दूसरे की जात में आपका एक एतबार और वकार का कद ऊंचा हो जाता है, और अगर उसके हाँ आपका एहतराम होगा तो आपकी बात मानना उसके लिए मजबूरी बन जाएगी, और आप बेहतरीन तरीके से कोशिश करेंगे, अच्छे तरीके से आसान अंदाज इख्तियार करेंगे, ज़बान का अच्छा इस्तेमाल हो, मजाज का अच्छा तरीका हो, आपकी शख्सियत शाइस्ता हो और बिल्कुल आपके अंदर किसी किस्म की कमज़ोरी ना हो, तो आप फिर हक गालिब ही आएगा। हक अच्छाई है, नेकी हक है और जहालत बातिल है। हक का मतलब है साबित होने वाला, बातिल का मतलब है मिटने वाला। नेकी हक है, जहालत बातिल है। ये कैसे हो सकता है कि नेकी कमजोर पड़ जाए और जो जहालत है वो मजबूत हो जाए? इसका मतलब है कि आपने नेकी को जो हक की सूरत थी उसमें पूरी तरह डाल के नहीं दिखाया। अगर आप नेकी को हक की सूरत में पूरी तरह ढाल के अच्छी तरह दिखा देते तो बातिल का तो वजूद ही नहीं है। आप में कुछ ना कुछ कमी है कि जो ज़बान से सिर्फ इजहार करें। अब नेकी में यह बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि नेकी में इखलास की जो शर्त है वो इस दर्जे पर है कि आप उसमें बिल्कुल बेलौस हो। आप किसी को अच्छा करना चाहते हैं इस वजह से कि इसके साथ मेरा ताल्लुक है तो ये अच्छा होगा तो मेरे लिए भी अच्छाई होगी, तो ये बात बजा है, लेकिन आपकी जात इसमें इन्वॉल्व है। किसी को अच्छा करने का जज्बा सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो कि ये अल्लाह का नेक बंदा बन जाए, ये दीन का पैरोकार बन जाए। इसमें चाहे आपकी औलाद है, चाहे आपका हमसाया है, चाहे रिश्तेदार है, जिसमें भी आपने अच्छाई पैदा करनी है या नेकी की वैल्यू आप उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो इस नीयत से कि ये अल्लाह का नेक बंदा बन जाए, ये दीन का पैरोकार बन जाए। इब्तदा ही से जिसके साथ आपका ताल्लुक है आप उसमें अपनी जात को बिल्कुल बेलौस कर दें। जब तक आप अपनी जात को पीछे नहीं करते, बेलौस नहीं करते, बेगरज नहीं करते, आपके अंदर नेकी की तर्जमानी के लिए जो जुर्रत होनी चाहिए, जो तर्जमानी होनी चाहिए, उसमें वो मेयार नहीं पैदा होता। तो नेकी उस दर्जे की नहीं आती कि जो बुराई का फिर चैलेंज करती नजर आए। जब उसको पता चलेगा इसको कुछ ना कुछ मुझसे मफाद भी है, इसलिए मुझे अच्छा देखना चाहता है, तो वो शख्स पहले नंबर पर यह सोचेगा, क्योंकि इंसान के नफ्स के अंदर यह शरारत है कि वो दूसरे के मफाद को बहुत जल्द भांप लेता है कि इसको मुझसे क्या लालच है। लेकिन दूसरे की तरफ से जो अच्छाई और नेकी की जो तरगीब है उसको समझने के लिए उसको बहुत कुछ कबूल करना पड़ता है, वो दिक्कत वाला मामला होता है। तो हमेशा किसी को रद्द करने का इंसान के अंदर ये एक तरीक़ेकार है, वो दूसरे के मफाद को बहुत जल्द चेक करता है, उसको थोड़ा सा भी नजर आ जाए वो उसको एक बहाना बनाता है, असल तो इसका मकसद ये है, और वो उसकी नेकी को भी रद्द कर देता है और अपने तो ये मुतमईन हो जाता है ये कोई नेक शख्स नहीं है। ये लाशऊर की एक दास्तान चलती है। हमारे ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि हम हर तरह से अपने आप को बेलौस करें, बेगरज करें, चाहे आपकी औलाद ही क्यों नहीं। जितना आप बेगरज और बेलौस होते जाएंगे, आप उनसे आज़ाद होते जाएंगे, आप उनसे अपने आप को कहें कि मुझे कोई आपका सहारा नहीं है, अपने बातिन की दुनिया से
मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। जितना आजाद होते जाएंगे, जितना उनसे बेगम होते जाएंगे, आपकी जात उतनी ज्यादा उनके अंदर मोतबर होती जाएगी। ये एक फितरत है। आप दुनिया में किसी से कैसे मुतमईन होते हैं? जब उसकी जात को देखते हैं ये बेगरज है, बेलौस है। तो भाई ये नफ्स का मामला हर एक के साथ ऐसे ही जुड़ा हुआ है। हम अपने दायरे कार में बुज़दिली दिखाते हैं, कमजोरी दिखाते हैं, वो उस तरह के बेलौस बेगरज नहीं हो पाते, नेकी के लिए वो कुर्बानी नहीं दे पाते जो हम दूसरों के लिए नेकी के ऊपर बड़ी शद्दोमद और बड़ी शिद्दत दिखा रहे होते। तो ये वो चीज है कि जिसकी बुनियाद पर नेकी को आसान तरीके से, बेहतरीन तरीके से पेश नहीं किया जाता। तो वो जो बातल जहालत की वजह से है, और बातल असल वजह इदावत होता है दो लोगों के दरमियान, वो वालिदैन और औलाद है, वो बहन भाई है, वो हमसाया है, वो रिश्तेदार हैं। असल अदावत बातल की वजह से होती है, और बातल का वजूद जहालत की बुनियाद पे खड़ा होता है। जब तक आप वो बातल खत्म नहीं करेंगे तो आपके अंदर कभी भी मुखलिस ताल्लुक पैदा नहीं हो सकता, औलाद और वालिदैन के दरमियान नहीं हो सकता। ये अल्लाह का कानून है। फरमाया जब आप उस बुराई को अच्छे तरीके से, जहालत को खत्म कर देंगे, तो फिर अल्लाह जमानत देता है इस बात की कि फ़ाइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, तेरे और उसके दरमियान जो अदावत है वो फिर ऐसे शक्ल इख्तियार कर जाएगी कि गोया के वो गूढ़ी दोस्ती है। फिर वो तेरे नाम पर जान भी छिड़केगा और फिर तेरी जात के लिए हर तरह अपने आप को पेश कर देगा, और तेरा वजूद उसके लिए एक तशख़्ख़ुस बन जाएगा, उसका एक नजरिया बन जाएगा तेरा वजूद। क्या मेरे लिए ये रोल मॉडल शख्स है, मैंने इससे जिंदगी जीने का करीना सीखा है, मुझे इससे जिंदगी की तहजीब मिली है, मुझे इस शख्स से जिंदगी के अखलाक मिले। तो जब तक आपकी जात से दूसरे के अंदर वैल्यू ऐड नहीं होती, कदर नहीं पैदा होती, आपकी जात दूसरों के लिए अच्छे अखलाक का जरिया नहीं बनती, और आप उसमें बेहतरीन तर्जुमान नहीं बनते, तो कभी भी नफ्सों की अदावत खत्म नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि नफ्स लालच से भरा हुआ है, और उसमें बिल्कुल कोई तकसीम नहीं, तफरीक नहीं कि वो नफ्स आपकी औलाद का है, वो आपके भाइयों का है, वो आपके रिश्तेदारों का है। नफ्स नफ्स है, और वो अदावत देखता है जहां वो देखता है कि को मुझसे ये गरज है। अब ये फैक्ट्री के लोग होते हैं ना, मालिक, वो तो मैनेजर बड़ा नेक शख्स हो, बड़ा अच्छा शख्स हो, बड़ा साले शख्स हो, मतलब क्या, उससे मकसद होता है उसको। आप औलाद की बाबत भी सोचें, औलाद बड़ी नेक हो, बड़ी साले हो, बड़ी औलाद फरमा बरदार, भाई आपका उससे मकसद है। जब तक आप आजाद नहीं होते, ये अल्लाह ताला ने एक आपके दिल में मोहब्बत आपकी औलाद की डाली है, किसी दूसरे की नहीं डाली। ये आपने अपनी अक्ल से मोहब्बत पैदा की है, ये उसकी तकसीम है। मकसद क्या था कि इस कम से कम इंसान पूरी दुनिया के लिए बेगरज नहीं होता, इन 3-4 बच्चों 6 बच्चों के लिए तो इंसान को बेगरज बनाया जाए, ताकि कल रोज़े हशर ये इसका बहाना न रहे मेरी तो ये मजबूरियां थी। भाई इनको दुरुस्त करने की तेरे पास तो कोई मजबूरी न थी। तो बेगरज नहीं होता इंसान, आजाद नहीं होता इंसान, अल्लाह के सहारे पर सिर्फ खड़ा नहीं होता इंसान, तवक्कल में मजबूत नहीं होता इंसान। इस बुनियाद पर उसकी औलाद उसके हाथों नेक नहीं होती। ये बात अच्छी तरह नोट कर लें। आपकी जात के अंदर तासीर नहीं होती, जिसकी वजह से आप एक इंसान अपने बच्चों को दुरुस्त नहीं कर सकता, तो वो धरती माने को उसका फायदा क्या? ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। ऐसे शख्स का वजूद ही नहीं है। तो ये अल्लाह ताला ने यहां असूल बयान किया है। जहालत होती है तुम्हारे दरमियान, जिसकी वजह से अदावत होती है। तुम जहालत को खत्म करो, ये तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए। आगे फल हम लगाएंगे, वहां मोहब्बत के बीज हम उगाएंगे, और फिर आपस में एक दूसरे के एतमाद और दोस्ती की खुशबू तेरा परवरदिगार पैदा करेगा। गोया कि वो गूढ़ी दोस्ती में बदल जाएगा वो रिश्ता। ये एतमाद हम पैदा करते हैं। तेरी कोशिश है कि जहालत और बातिल अच्छी तरह मिट जाए।